السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ آج کے کردار میں میگنانا ماریوس، مصری کمانڈر اور صلیبی لڑکی مووی بالیان اور 20 خونخوار درندے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہوگی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ اگر تم مجھے اس ذلیل زندگی سے نجات دلا دو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی اور میرا باپ تمہیں سونے کی اشرفیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے اس کا طریقہ یہ بتایا، میرے ساتھ سمندر پار بھاگ چلو، کشتیوں کی کمی نہیں، میرا باپ بہت امیر آدمی ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں نہایت اچھا مکان اور بہت سی دولت دے گا، تم تجارت کر سکتے ہو۔ مصری کو یہ یاد رہ گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا مذہب ترک نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے ذرا سوچ کر کہا، میں تمہارے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ اس کے بعد وہ فرار اور شادی کا پروگرام بنانے لگے۔ لڑکی نے اسے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی، اچھی طرح سوچ لو، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سون سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ وہ اطمینان سے سوچ سکے اور عمل کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لی۔ لڑکی نے پہلی ملاقات میں ہی یہ مقصد حاصل کر لیا اور مصری کو منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا اتنے رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہا، ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا آپ اور اپنا فرض اور اپنا مذہب ہی بھول گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور شتربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ شپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لیے دور چلا گیا۔ لڑکی نے اسے آسمان پر پہنچا دیا۔ صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب ایک گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں عیش کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 افسری ایسے تھے جو کمانڈر کی ان حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے۔ جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہوگی۔ دونوں خاموش تو ہو گئے لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں دور آگے بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کی ٹیلوں کا تھا، صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے گھول اترتے ہوئے شور بپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ یہ لاشیں ہیں، بدبو بھی تھی۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھی جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔
सुल्तान अयूबी के जाबाज सवारों ने रातों को उनके अक़बी हिस्से पर हमले करके ये कुश्त खून किया और सूडानी फौज को तितर बितर कर दिया था। यहाँ से आगे मेलू वसाअत में लाशें बिखरी हुई थी। सूडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तरकश थे, बर्छियां, तलवारें और ढाले भी थी। कैदियों ने यह हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबिन ने उस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टीलों के करीब सरसब्ज जगह थी, पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टीलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो वो उसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, ये जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सब्ज टीले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊंटों से उतरे, जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। दो टीलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहां सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और लड़की भी जाग रही थी। उस रात उसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह बंदहोश करना था। उसे जब खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चली गई। उस लड़की की खातिर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की उसे टीले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। उसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ साथ चलता रहा और लड़की उसे 3 टीलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर राबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे जरा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले राबिन पेट के बल रेंगता मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। टीले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तरकश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापिस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जा खड़े हुए। राबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 शुत्रबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। राबिन ने जो ही बर्छी ऊपर उठाई सन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर राबिन के सीने में उतर गया। उसके साथ ही एक तीर राबिन के एक साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी औंधे हो गए। आखिरी कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि उन मुहाफिजों में से किसी की आंख ही ना खुली जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीरंदाज आगे आए। उन्होंने मशालें रोशन की। ये 2 वो मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दयानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई थी। उसने अपने साथी को जगाया और कैदियों का ताक़ुब दबे पांव किया। उन्होंने ये इरादा किया था कि अगर कैदियों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें तीरों से खत्म कर देंगे, मगर इससे पहले वो देखना चाहते थे कि ये क्या करते हैं। अंधेरे में उन्हें जो कुछ नजर आता रहा वो देखते रहे। कैदी हथियार उठाकर वापस आए तो दोनों मुहाफिज आकर टीले के साथ छुप कर बैठ गए। जो ही कैदियों ने मुहाफिजों को बर्छियां मारने के लिए बर्छियां उठाई, उन्होंने तीर चला दिए। फिर चारों को खत्म कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर को आवाज दी तो उसे लापता पाया। उस आवाज से लड़कियां जाग उठी और बाकी मुहाफिज भी जागे।
लड़कियों ने अपने आदमियों की लाशें देखी, हर एक लाश में एक तीर उतरा हुआ था। लड़कियां खामोश सी लाशों को देखती रही। उन्हें मालूम था कि ये आदमी आज रात क्या करेंगे। मिस्री कमांडर वहां नहीं था, वो एक लड़की भी गायब थी। मुहाफिजों को मालूम नहीं था कि जब उन कैदी जासूसों के सीनों में तीर दाखिल हुए थे, बिल्कुल उसी वक्त उनके मिस्री कमांडर के पीठ में एक खंजर उतर गया था। उसकी लाश तीसरे टीले के साथ पड़ी थी। उस रात सेहरा की रेत खून की प्यासी मालूम होती थी। मिस्री कमांडर अपने मुहाफिज दस्ते और कैदियों से बेखबर उस लड़की के साथ चला गया और लड़की उसे खासा दूर ले गई थी। उसे मालूम था कि उसके साथी ये खूनी ड्रामा खेलेंगे। लड़की मिस्री को एक टीले के साथ लेके बैठ गई। उसी टीले से जरा परे बालियान और उसके 6 मुहाफिजों ने पड़ाव डाल रखा था। उनके घोड़े कुछ दूर बंधे हुए थे। बालियान मोबी को साथ लिए टीले की तरफ आ गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। मोबी ने नीचे बिछाने के लिए दरी उठा रखी थी। बालियान मुहाफिजों से दूर जाकर ऐश व हसद करना चाहता था। उसने दरी बिछा दी और मोबी को अपने साथ बिठा लिया। वो बैठे ही थे कि रात की सिकवत में उन्हें करीब से किसी की बातों की आवाजें सुनाई दी। वो चौंके और दम साध कर सुनने लगे। आवाज किसी लड़की की थी। बालियान और मोबी दबे पांव उसी तरफ आए और टीले की ओर से देखा। उन्हें 2 साए बैठे हुए नजर आए। साफ पता चलता था कि एक औरत है और एक मर्द। मोबी और ज्यादा करीब हो गई और गौर से बातें सुनने लगी। मिस्री कमांडर के साथ उस लड़की ने ऐसी वाज़ेह बातें की कि मोबी को यकीन हो गया कि उसकी साथी लड़की है और ये भी वाज़ेह हो गया कि उसे काहिरा ले जाया जा रहा है। मिस्री ने जो हरकतें और बातें की वो तो बिल्कुल ही साफ थी, किसी शक की गुंजाइश नहीं। तो मोबी जान गई कि ये मिस्री उस लड़की को उसकी मजबूरी के आलम में अय्याशी का जरिया बना रहा है। मोबी ने बिल्कुल न सोचा कि इर्द गिर्द कोई और भी होगा और उसने जो इरादा किया है उसका नतीजा क्या होगा। उसने पीछे हटकर बालियान के कान में कहा, ये मिस्री है और ये मेरे साथ की एक लड़की के साथ ऐश कर रहा है। उस लड़की को बचा लो। ये मिस्री तुम्हारा दुश्मन है और लड़की तुम्हारी दोस्त। उसने बालियान को ज्यादा भड़काने के लिए कहा, ये बड़ी खूबसूरत लड़की है, इसे बचा लो और अपनी सफरी हरम में इजाफा कर लो। बालियान शराब पिए हुए था। उसने कमरबंद से खंजर निकाला और बहुत तेजी से आगे बढ़कर खंजर मिस्री कमांडर के पीठ में घोंप दिया। खंजर निकालकर उसी तेजी से एक और वार किया। लड़की मिस्री से आजाद होकर उठ खड़ी हुई। मोबी दौड़ी और उसे आवाज दी। वो दौड़कर मोबी से लिपट गई। मोबी ने उससे पूछा कि दूसरी कहाँ है। उसने राबिन और दूसरे साथियों के मुतालिक भी बताया और ये भी कि वो 15 मुहाफिजों के पहरे में है। बालियान दौड़ता